Good morning, students. Myself Anil Desai again over here with my science subject in standard 4th. Today I will teach you again that adaptation in plants which was continued in our last lecture. In chapter 2 adaptation in plants, yesterday I already explained you the definition of adaptation. In that, I told you that the development of characteristics which help an organism to survive in a particular environment is known as adaptation. Okay, after that, I already explained you the habitats of plants. I explain you about terrestrial plant. What is terrestrial plant? Some plants grow on land. They are called terrestrial plants. Plants which grow in water are called aquatic plant. Now terrestrial plants. Most plants grow on the land. Plants that grow on land are called terrestrial. Okay, in that I explain you about that plains. Plain means flat surface area over there, then hilly area, okay, over there, hot and damp area, okay, over there, how that trees are, okay. After that I explain you about desert area plants too. In desert, uh, in deserts most plants grow without leaves, okay. Cactus, prickly pears and palm are some such plants growing in desert have spines instead of leaves. ओके, जो डेजर्ट एरिया में प्लांट होते हैं ना बेटा, उनमें लीव्स नहीं होते हैं, उसके बदले क्या होते हैं, कांटे होते हैं. ओके, जैसे कि कैक्टस है, प्रिकली पियर्स है, पाम है, ये सभी प्लांट्स. प्लांट्स आर सच प्लांट, पाम्स आर सच प्लांट्स. ओके, पाम भी एक टाइप का प्लांट्स ही कहलाता है. ओके, जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है. सिंस दिस प्लांट्स cannot afford to allow their leaves to lose water. Okay, their leaves are reduced to spines. Spines prevent the loss of water. Okay, already जो desert area होता है वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम है, तो अगर लीव होते हैं तो वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एंड ऑल. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कांटे होते हैं, तो कांटे में जो पानी जो भी रहेगा वो इंटेक्ट रहेगा, वो जल्दी वो पानी को लॉस नहीं होने देगा. ओके, सो प्लांट्स रिटेन वाटर, इसीलिए प्लांट्स वाटर को रिटेन करते हैं. देयर ग्रीन थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल. ओके, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. कहाँ पे, उनकी जो ग्रीन थिक एंड फ्लैशी स्टेम होती है ना, ओके, उसमें जो स्टेम होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Therefore, they do the work of the leaves, that is of manufacturing food. They also store food and water from the plants, for the plants. Okay, वो भी खाना भी बनाते खुद है और स्टोर भी करते हैं. ओके, जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं वो. Next, in marshy area. In marshy area, the soil is sticky and clay. Okay, हम जो बोलते हैं ना कादव कीचड़ वाला, okay, वहाँ पे clay-like soils do not have enough air for the roots of the plants to breathe easily. Their roots do not get air as the soil is covered with water. उनके जो रूट्स होते हैं उनको डायरेक्ट एयर नहीं पहुंचती है. क्यों? क्योंकि उनकी जो वो जो रूट है वो सॉइल के साथ साथ पानी से भी कवर हुई होती है. सो द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. तो इसीलिए रूट को तो फिर वो तो चाहिए ना बेटा, एयर तो चाहिए, उसके बिना वो पूरा ट्री कैसे ग्रो होगा. तो वो क्या हो करते हैं कि उनके जो रूट्स हैं ना वो सॉइल के बाहर आके उगते हैं. ओके,
जैसे मैंग्रोव्स है तो उसके रूट्स सॉइल के बाहर आके फिर ग्रो होते हैं। बाजू के पिक्चर में आप वो चीज़ देख सकते हो। The roots grow out of the soil and water to breathe. The plants growing in this region have special roots called breathing roots. ओके ऐसे रीजन में जैसे जो सॉइल के बाहर आके रूट्स उगते हैं ना, वो रूट्स को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स. द ट्रीज दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. ओके वहाँ पे जो ट्रीज ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स. Okay, let's move to our second topic, that is aquatic plant. What is aquatic plant? Plant that grow in water are called aquatic plant. Okay, plant जो पानी के अंदर उगते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? aquatic plant. Plants that live in water have special features which enable them to adapt themselves to their surroundings. ठीक है, उनको वो ऐसी आदत हो चुकी है कि वो आजू बाजू के जो भी एरिया है पानी वाले उसमें वो ग्रो कर सके. एक्वेटिक प्लांट्स आर 3 टाइप्स. वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स. पहला क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स. सेकंड फिक्स प्लांट्स एंड थर्ड अंडर वाटर प्लांट्स. ओके सबसे पहले मैं आपको फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी. सम प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लाइट बॉडीज. ओके वो पानी के ऊपर तैरते हैं. ठीक है, इसीलिए फ्लोट यानी क्या? तैरना. तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स. ओके डकवीड, वॉल्फिया, पिस्तिया एंड वाटर लेट्यूस आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स. ये सभी फ्लोटिंग प्लांट्स में कहलाते हैं. ओके बाजू में आपको उसका पिक्चर दिखेगा, उससे आपको पता चलेगा क्योंकि ये आपने कहीं बहुत सारी जगह देखा हुआ होता है. ठीक है. सम प्लांट्स हैव स्वेलिंग ऑन देयर लीफ स्टॉक्स विच आर फिल्ड विथ वाटर. ओके काफ़ी प्लांट्स में क्या होता है कि स्वेलिंग यानी सूजन कैसी होती है हम लोगों को, वैसे लीफ जैसे सूजे हुए हो ना वैसे दिखते हैं. वो ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. ओके दिस मेक द प्लांट्स लाइट एंड कीप देम अफ्लोट ऑन वाटर. ओके वो जो फूले फूले रहते हैं ना, इसकी वजह से होता क्या है, ऐसे हमें बड़े प्लांट्स दिखेंगे पर उसका वजन इतना नहीं होता, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. ओके जैसे बलून है, बलून के अंदर सिर्फ एयर है बराबर, तो वो हमें दिखेगा बड़ा पर वो पानी के अंदर क्या करेगा? फ्लोट करेगा ना. सेम वे फॉर एग्जाम्पल वाटर हिनेज these plants protect small water animal from the heat to the sun. Okay so floating plants over. Now next it is fixed plants. What is fixed plants? These plants are fixed to the soil at the bottom of the pond which is the help of their roots. Okay ये ऐसे प्लांट है जो होते पॉन्ड्स के अंदर है, पानी के अंदर, बट उनका जो रूट होता है ना वो पॉन्ड जो होता है ना उसके एकदम अंदर नीचे बॉटम में सॉइल के साथ जुड़ा हुआ होता है. देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ओके उनके लीव्स कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं और वो पानी के सरफेस में तैरते हैं. दे हैव देयर अपर सरफेस कवर्ड विथ वैक्स एंड बेयर स्टोमेटा यानी टाइनी हॉल्स. ओके फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस. ओके गैस को एक्सचेंज करने के लिए उनकी जो बॉडी होती है ना अपर सरफेस वाली, जो अपर सरफेस ऊपर के साइड की जो उनकी सरफेस है ना वो आपको वैक्स जैसी लगेगी. ठीक है वैक्स लगा हो ना पत्ते के ऊपर ऐसा लगेगा और उसके अंदर टाइनी होल्स होंगे जिससे वो गैस ले भी सकता है और बाहर छोड़ भी सकता है. You must have seen plants like the lotus and water lily. आपने बहुत बार लोटस और वाटर लिली देखा होगा. The stem of the lotus is hollow and light which keeps the leaves and the flowers afloat.
These broad floating leaves provides a nesting place for some tiny birds. Okay, so this called fixed plants. Our next topic is underwater plants. Plants like the tap grass and pondweed remain under water. आपको ये मालूम होगा कि काफ़ी प्लांट्स कैसे होते हैं जो पानी के अंदर नीचे के साइड उगते हैं. ओके, सो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स. These plants have long ribbon like narrow leaves. जैसे रिबन कैसी लंबी लंबी होती है वैसी उन लोगों के पास वो रिबन होती है, रिबन जैसी पत्तियाँ होती हैं उनकी. These leaves arise in cluster from the root and have no stomata at all. They breathe through their body surface. उनकी body surface से वो breathe करते हैं. These plants clean the water by taking the carbon dioxide. Okay, वो पानी को क्लीन कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पानी में वो ब्रीद इन में लेते हैं, विच इज़ ब्रीदेड आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एंड टर्टल. ओके, पानी के अंदर फिश एंड टर्टल जैसे काफ़ी एनिमल्स रहते हैं. वो लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वही पानी में ये जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं. ओके, सो उसकी वजह से ये ट्रीज जो अंडर वाटर प्लांट्स है उसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सही होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बैलेंस होती है. सो दिस इज वाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम. इसीलिए आपने काफ़ी बार एक्वेरियम में देखा होगा ना कि अंदर प्लांट रखा है. वो प्लांट अंदर रखने का मेन रीज़न आपको पता चला क्या है अभी. ओके, गुड. सो नेक्स्ट टॉपिक, सम अनयूजुअल प्लांट्स. From there, I will teach you in next period. Okay, so some unusual plants that are not green. Okay, these two topics I will explain you in our next period. After that, we will take quick recap and keywords. Okay, so till that, thanks for watching. Have a nice day. Stay home, stay safe, and take care.